So next topic is categories of functions. What are the various categories of functions? First is a function with no arguments and no return. Means ਉਹ function ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ input ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ return ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣਾ. Clear ਹੈ? ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਨੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਨੋ ਰਿਟਰਨ ਵੈਲਿਊ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਨੋ ਰਿਟਰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। थर्ड इज अ फंक्शन विद आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। इट मीन्स आप इनपुट भी करवा रहे हैं तो रिटर्न भी करवा रहे हैं। फोर्थ इज अ फंक्शन विद नो आर्गूमेंट्स बट रिटर्न वैल्यू। इट मीन्स कि जिद आप इनपुट कुछ नहीं करवा रहे बट वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। ਹੁਣ वन बाय वन ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਟਰਨ ਵੈਲਿਊ। ਵਿਦਾਊਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਟਰਨ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? void। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? void। that means ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? void without arguments। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਟਰਨ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸੇਮ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ void add void। ਹੁਣ void ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? void add void semicolon। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਸ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? void main ਤੋਂ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ void main। ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਓ ਐਡ ਨਾ void ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? void ਮੀਨਸ no ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ, ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਫਲੋਟ 'ਚ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਡਬਲ 'ਚ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੀਨਸ no ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ। ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਟਰਨ ਵੈਲਿਊ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? void। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਐਡ ਐਮਟੀ ਪੈਰੈਂਥੇਸਿਸ ਐਂਡ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਾਲਿੰਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ void add void। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਇਆ ਐਂਟਰ ਨੰਬਰਸ
दैन स्कैन कराई, इट मीनस वैल्यूज एंटर कराइया एक्स ते वाई दी, एक्स ते वाई दी जो एंटर वैल्यू एंटर कराने तो बाद एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होया, रिजल्ट किच स्टोर होया Z दे विच, दैन प्रिंट होया Z। क्लियर है, मीनस इत्थे आपां इहदे च इनपुट कराने आ, एक्स वाई दी वैल्यू इत्थे ही फंक्शन डेफिनेशन दे विच ही इनपुट होंदी है, रिजल्ट एड होके रिजल्ट किच आ गया Z दा, तो Z इत्थे ही आउटपुट प्रोड्यूस करन दिया, रिटर्न नहीं करता पिया। क्लियर है, ना वो इनपुट कितों होर लै रहा तो ना ही वैल्यू रिटर्न कर रहा, इस चीज़ को आप कहेंगे विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी इज विदाउट रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट। इट मीनस इत्थे भी रिटर्न उन्हें कुछ नहीं कराना, बट आर्ग्यूमेंट पास कराने हैं, सेम एज इट इज void add नाम का फंक्शन बनाया, void मीनस नो रिटर्न टाइप हुण, बट आप इत्थे आर्गूमेंट्स पास करने हैं, आर्गूमेंट्स पास करने हैं मीनस लाइक इंट ए कोमा इंट बी। क्लियर है, एक ही दो आर्गूमेंट्स है जिन्हें ही पास करवाने। क्लियर है, हुण ये किहड़े आर्गूमेंट्स ने, इन्होंने आप कहांगे फॉर्मल आर्गूमेंट्स। क्लियर है, दीज आर दी फॉर्मल आर्गूमेंट्स। हुण आपां मेन फंक्शन स्टार्ट किया, मेन फंक्शन च एक्स ते वाई दी वैल्यूज इंसर्ट कीतियां, इत्थे सपोज करो एक्स की वैल्यू यूजर ने एंटर करती है 2। क्लियर है, एंड वाई की वैल्यू एंटर कराती है 3। क्लियर है, इतने पहला आ गया ना एंटर 2 नंबर, स्कैनअप के थ्रू आप वैल्यूज एंटर कर दी थी, एक्स की वैल्यू इज 2 एंड वाई की वैल्यू इज 3। क्लियर है, दैन एडिश एड फंक्शन चलिया एक्स कोमा वाई, इट मीनस इतने की होगा एड 2,3 आ वाली वैल्यू फंक्शन पास करेगा जो फंक्शन कॉलिंग करन दी है, इत्थे किहड़ी वैल्यूज इस आर्गूमेंट्स नूं बाकी कहंदे आ एक्चुअल आर्गूमेंट्स। क्लियर है, दैन फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन च आ गया void add int a कोमा int b। हुण तुसीं कहोगे कि इत्थे आपां x y करने आ ते इत्थे int a b यूज करने आ, क्यों? क्योंकि एक्चुअल च इत्थे की हो रहा जो आपां विद आर्गूमेंट की गल करिए, एक्चुअल च की हुंदा है, एक सपोज करो आ x है आ y है, x दे विच मैं 2 पास करा दी वैल्यू, y दे विच 3 पास कराती, ये तो साडे हो गए एक्चुअल आर्गूमेंट्स। क्लियर क्लियर है, बट जो आप फंक्शन च वैल्यू पास कराने एक्चुअल च की हुंदा है, जी एक्स की वैल्यू है वो ए च कॉपी होएगी, वाई की वैल्यू बी च कॉपी होएगी। क्लियर है, जिथे एक्स की वैल्यू 2 हैगी वो कॉपी किच होएगी 2, कॉपी हो जाएगी ए की पोजीशन ते, हुण ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 3। सो इस तरीके नाल ए डेटा कॉपी हुंदा है। क्लियर है, सो इनू आप हुण जिहदे च डेटा कॉपी हो रहा उन्होंने आप कहने फॉर्मल आर्गूमेंट्स। क्लियर है, इट मीनस एक्चुअल आर्गूमेंट्स तो डेटा कितने कॉपी हो रहा फॉर्मल आर्गूमेंट्स से। हुण एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म है इंट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए बी की जी वैल्यू आई 2 + 3, रिजल्ट कितना आ गया 5, 5 किच स्टोर हो गया सी च एंड प्रिंट हो गया। क्लियर है, ये वैल्यू रिटर्न नहीं की, इन्हें सिर्फ इनपुट ली मेन फंक्शन च। ठीक है, कॉल जो आप फंक्शन कॉल करते हैं एक्चुअल पैरामीटर एक्चुअल फॉर आर्गूमेंट वैल्यू कॉपी हो गई कितने जाती है फॉर्मल आर्गूमेंट्स च, दैन प्रिंट हो गया ਉਹਦਾ रिजल्ट। ठीक है जी, इनू आप कहते हैं विदाउट रिटर्न टाइप एंड विद आर्गूमेंट्स। थर्ड टाइप इज विद रिटर्न टाइप विदाउट आर्गूमेंट्स। इट मीनस इस रिटर्न टाइप हैगी है बट आर्गूमेंट्स अहीं पास नहीं करा रहे, सिंपली रिटर्न टाइप इज इंट एड। हुण इंट एड का मतलब की है कि जो डेटा साडा रिटर्न होएगा वो किस फॉर्म च होएगा, किस डेटा टाइप की फॉर्म च होएगा, इंटीजर फॉर्म च होएगा। क्लियर है, हुण ये सब तो पहले मैं मैंशन करता फंक्शन प्रोटोटाइप या इन्हों आप कह सकते हैं फंक्शन डेक्लारेशन। क्लियर है, दैन मेन फंक्शन शुरू होया, ये लिखिया आप इंट सम इज इक्वल्स टू एड, इट मीनस एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने तो बाद रिजल्ट किच कॉपी होएगा सम दे विच, दैन प्रिंट होएगा क्योंकि एड फंक्शन एड इत्थे की हो रही है कॉलिंग हो रही है, फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन जो कॉल होएगा इट मीनस कि फंक्शन डेफिनेशन च गया कंट्रोल। क्लियर है, इतने ए बी सी इच की होया कि 2 नंबर आप ऐड कराए, ऐड कराने तो बाद प्लस कराया लाइक 2 + 3, रिजल्ट किच स्टोर हो गया सी च। हुण सी च रिजल्ट कितना आ गया सी इज इक्वल्स टू 5, हुण की रिटर्न करांगे सी का रिजल्ट 5 रिटर्न होएगा कितने, 5 रिटर्न कितने होएगा, 5 रिटर्न होएगा इधर, इतने रिजल्ट क्या आ गया 5,
नाउ सम इज इक्वल्स टू 5 एंड प्रिंट होएगा 5। क्लियर है? इस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ विद रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स कित्थे आणगे? मेन डेफिनेशन दे विच, क्योंकि इत्थे आर्गूमेंट्स कोई पास नहीं हो रहा। आर्गूमेंट्स आणगे डेफिनेशन दे विच एंड वैल्यू रिटर्न होएगी। नेक्स्ट इज विद रिटर्न टाइप एंड विद आर्गूमेंट्स। ये वैल्यू आप आर्गूमेंट्स भी पास करा रहे हैं तो रिटर्न भी करवा रहे हैं। हुण इह लिखिया इंट एड इंट ए कोमा इंट बी। इट मीनस कि जी वैल्यू रिटर्न होएगी वो किस टाइप की होएगी? इंटीजर टाइप की होएगी। फंक्शन का नेम की है? एडिशन एड की है, फंक्शन का नाम हो गया। ए ते बी ए की होणगे? एक्चुअल पैरामीटर्स। क्लियर है? हुण इहदे च मेन फंक्शन चलिया, इह च वैल्यू पहला पास हुई ए बी दी, मीनस एक्स ते वाई। इह च एक्स की वैल्यू होगी 2, वाई की वैल्यू होगी 3। दैन वैल्यूज पास हो गई, इत्थे आ गई एड। जो फंक्शन कॉल करांगे नाल इनपुट करा रहे वैल्यू 2,3। जो इनपुट करावांगे कंट्रोल कित्थे चले जाएगा? फंक्शन की डेफिनेशन दे उत्ते। हुण एक्स की वैल्यू कॉपी होगी ए च, वाई की वैल्यू कॉपी होगी बी च। नाउ ए इज इक्वल्स टू 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 3। दैन एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होया, सी इज इक्वल्स टू 5 एंड वैल्यू जी सी दी है वो रिटर्न हो जाएगी सम दे विच। इत्थे कितना आ गया रिजल्ट? 5। हुण सम इज इक्वल्स टू 5 एंड रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरीके नाल आपां 4 कैटेगरीज नूं समझिया सिंगल एग्जाम्पल दे नाल। क्लियर है? आई होप तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया होगा। अगर किसी ਨੂੰ कोई भी डाउट है तो कमेंट करो ते अपने डाउट्स को क्लियर करो। थैंक यू सो मच।